Praise the Lord, Pastor Devinder. Praise the Lord, Sister Nazima. कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, how are you? We are good, Pastor. Thanks God. Good, 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 आ, good. Thank you, Jesus. अभी हमने कि बच्चों ने से पहले कवा लें फिर अभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो बच्चों को करते हैं पहले उसमें ब्रदर जॉय तो बिजी है ना? ब्रदर जॉय, हाँ, एक वो कोई मीजो वो है आज ना, कोई नहीं, पहले बच्चों से उसका, कर लेते हैं। हाँ, आप बच्चों से स्टार्ट करते हैं हाँ देन जी, हाँ आई जी, हाँ जी, राइट, राइट। आप प्रेयर कर दे पास्टर जी, ओपनिंग प्रेयर ना। ओके ओके। फादर गॉड, प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए। और प्रभु जी हम तेरी हजूरी में आना चाहते हैं और प्रभु जी जो भी सीखें और तेरी आराधना करें प्रभु दिल से और सच्चाई से और प्रभु जी तेरे भवन में आ सकें प्रभु जी। जो बिल्डिंग नहीं है पर प्रभु जी हम आत्मा में एक साथ मन हो सके। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप स्टार्ट करें फिर देन यू लेट मी नो व्हेन आई शुड आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके जी ओके। Sister Lisa, over to you. Hi, praise the Lord. We can't hear you, you muted. Praise the Lord, Uncle. Praise the Lord. So we'd like to thank God today for letting us have this opportunity. And me and Isa aren't really that good at Hindi, so we apologize if we make any mistakes. So thank you. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, there is none beside you.
Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Then from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, through a virgin came the word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost. You did to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead rose from their tombs, all the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now that gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. धन्यवाद के साथ स्तुति आऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊने नाम, प्रभु ऐसा दूजा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार से तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Praise the Yeah, Lord. beautiful, beautiful, Your beautiful. keyboard was not even heard because I think you did not change the Zoom settings, but still it was so melodious and so beautiful. I didn't want to Yeah. stop you. Thank Wow. you. Thank you. So beautiful. So very good. Going forward, just want to tell you that in Zoom settings, you have to go to audio settings and enable original sound for musicians. If you go to settings, There wasn't any karaoke. We just sang like that. okay. So- Okay. Wow. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Wow, beautiful, beautiful. तू योग्य धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. Yes, Jesus, धन्यवाद के साथ. Oh Jesus, oh Rabashanana, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु में. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु में. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी
चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए फानों में तू ही मेरी चट्टान। होने दे आपके हृदय से ऐसा आराधना को निकले। कोई भी तूफान, कोई भी बीमारी, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। नीत करनी तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। ओ आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए फानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए फानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए फानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे। ओ यीशु तेरे निशान बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझे पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर
बढ़ती हुई यीशु तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तो कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीत कल ने तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this wonderful time, Lord. Amen. Amen. Over to you, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor Devendra. Thank you, Eliza, and how do you pronounce your sister's name? Thank you for the worship, Isa. Right? Thank you so much. Beautiful worship. Worship is something you don't want to get out of here because it breaks all chains. So beautiful. Thank you. Thank you. Thank you, Uncle. Thank you. My mother also wants to sing a song. Praise the Lord. आए हमारे No, it's okay. Can you hear? हेलो Yes. ब्रदर आप मुझसे बात कर रहे हैं या बच्चों से नहीं मैं एक पूछ रहा अभी मैं पूछ रहा था आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी आपकी कम है हाँ बोलना. हेलो प्रेज द लॉर्ड I think that give me 1 minute. This seems to be something wrong. हेलो प्रेज द लॉर्ड I don't think you're audible. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द अच्छा आए हमारे पाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए हमारे पास जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती जैसे तेरी मर्जी
आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी भाषा हटाए। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, वैसे अपराध को माफ कर दे। आए हमारे पाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। आए हमारे बाप। Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Beautiful. Give me 1 minute. One moment, guys. I'd save the PPT, but somehow, I'm not able to find it in the drive. So ऐसा कई बार होता है ना. I have this belief that a lot of times any would try to create unnecessary chaos. By God's grace, I found it now. So today's topic is debtors to flesh. देह के ऋणी. हम सबको पता है कि हम जो हैं वो है अपने शरीर है. हम शरीर के वो नहीं है, कर्जदार नहीं है. हम मसीह के कर्जदार हैं जिसने हमें अपने लहू से मोल लिया है. तो वी आर गोइंग टू रीड गलेशियंस टुडे, गलेशियंस 5, गलातियों 5, और हम स्टार्ट करेंगे वर्स 1 से. सिस्टर विनीता ये दे. Okay. हाँ जी, गलेशियंस 5:1. या मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. अब यहाँ पे we all know that we have been set free, लेकिन तब भी इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम बॉन्डेज में विलिंगली चले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जब किसी ने हमसे कोई चीज़ बोली, हमें पता है कि वो आत्मिक रीति से ठीक नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको संडे को चर्च जाना है और कोई आपके फैमिली में एक वेडिंग आ गई या कोई ऐसी इवेंट आ गई, और आप क्या है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, और आप क्या चूज़ करते हो कि हम चर्च नहीं जाते, कि परमेश्वर से तो माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ करने वाला परमेश्वर है, चलो इस वेडिंग में, इस इवेंट में चले जाते हैं. तो हम क्या चले जाते हैं उस टाइम पे? बॉन्डेज ऑफ फ्लैश. मान लीजिए आपको एक रीति, एक जिसमें
एक एक काम जो है वो सब लोग करते हैं, जैसे कि एक दान पुण्य, आपके पास कोई दान पुण्य के लिए आया और आपने बिना मसीह से पूछे उस दान पुण्य को कर दिया, बाद में आपको उसमें हर्ट हुआ है ना, कि या तो जिन्हें आपने करा उन्होंने आपके अगेंस्ट कोई बात बोली, या फिर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, और उसमें क्या था कि आपने जो वो डिसीजन लिया वो किस में लिया, फ्लैश में लिया, आप फ्लैश की बॉन्डेज में चले गए। जो मसीह हमें सिखाते हैं वो ये क्या है कि वी आर सपोज टू प्रे ऑलवेज, सो वी हैव टू प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करनी है। तो किसी भी सिचुएशन में जब हम कोई डिसीजन बिना प्रार्थना के ले रहे हैं तो वो डिसीजन क्या है, वो शरीर में डिसीजन है, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अच्छी बात यह है कि मसीह आपको हर कॉन्सिक्वेंस से निकाल लेंगे, हर सिचुएशन से निकाल लेंगे, जब हम उसकी दुहाई देंगे वो हमें छुड़ा देंगे, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अपने साथ दुख लेके आएंगे। तो जो यहाँ पे वो बोला गया है कि हम शरीर के दास्तव में ना रहें, हम मसीह की बॉन्डेज में रहें, है ना, कि हम क्या है, मसीह से पूछ के सब कुछ करें। क्यों? क्योंकि उसी की योजना है हमारे लाभ की, हमारी हानि की नहीं है। इसका सेकंड वर्स भी देखते हैं, 13 सॉरी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। For you, brethren, have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी स्वतंत्रता है वो हमारी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपने क्या कहा, मैं उस इवेंट में चला जाता हूँ, वेडिंग में चला जाता हूँ, और बाद में क्या है, मैं मसीह से माफ़ी मांग लूँगा। तो हम अपनी स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता किसके लिए है? हमारी स्वतंत्रता है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। I'm sorry, हमारी स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम उन कामों को करने वाले हों जो मसीह ने हमारे जीवन में ठहराए हैं। उसमें सबसे बड़ा क्या है, मसीह ने क्या कहा कि इमिटेट मी, है ना। मसीह ने क्या कहा कि हमने उसके जैसा बनना है। मसीह ने क्या करा, मसीह ने आकर के सर्व करा, जो उसकी क्रिएशन थी मसीह ने उसे सर्व करा। मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, हमें सिखाया, हमें क्या है, सब कुछ सहना सिखाया। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपनी सेल्फिश एम्बिशन के लिए, या फिर एक इंसान के द्वारा ग्लोरी पाने के लिए, तो वो मसीहत नहीं है। जो कुछ करना है वो किस में करना है, प्रेम में करना है, और दूसरे की सेवा करने के लिए करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लाइफ है, इंडिया, ये वर्ल्ड में जो लाइफ हमारी, ये एक लाइफ ऑफ एग्जाम्पल होनी चाहिए कि हम मसीह को इमिटेट कर रहे हैं, और लोग हमें, जैसे पौलुस क्या कहता है कि जैसे मैं मसीह को इमिटेट करता हूँ तुम भी मुझे इमिटेट करो। तो वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, और वो क्या है, हमारा विवेक हमें बताएगा कि क्या हम उस जीवन को जी रहे हैं कि हम उस जीवन को नहीं जी रहे हैं। तो हमें मसीह को सबमिट करना है, हर चीज़ को प्रेयरफुली करना है, और उन चीज़ों को करना है जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकें। इसका 14 और 15 भी पढ़ दें। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। Wow, wow. For all law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. तो इसमें क्या है कि सारी की सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी कौन है हमारा? हर वो इंसान जो हमारे जीवन में परमेश्वर लेके आए हैं वो हमारा पड़ोसी है। चाहे उसने हमारे साथ अच्छा करा है, चाहे हमारे साथ बुरा करा है, हमने उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमने उसके लिए, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए एक याचना करनी है, एक मन रखना है। अगर हम लिखा है बट इफ़ यू बाइट एंड डिवावर वन अदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे वो जाके वो फिजिकली काट रहे हो, है ना, या फाड़ रहे हो। जब अपने शब्दों से किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो वो यही चीज़ है। और फिर क्या है, वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि वो वहाँ से खड़ा ही नहीं हो सकता। उसकी इतनी बुराई हो चुकी है उस इंसान की, सब लोगों ने मिलकर उसकी इतनी बुराई करी है कि वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसे खुद लगने लगा है कि मैं इससे नहीं उठ सकता। बल्कि मसीह क्या कहता है, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वे
बर्फ की तरह सफ़ेद किए जाएंगे, है ना। सो जब हम किसी के लिए देख रहे हैं, किसी के अंदर कोई कमी को भी देख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसके लिए प्रेयर करनी है, हमने उसे इनकरेज करना है। पौलुस क्या कहता है कि तुम्हारे शब्द किस चीज़ के हों, आशीषित करने के, प्रोत्साहित करने के और परमेश्वर के नाम को जलाल देने के, है ना। तो जब हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे हमें पता भी है कोई गलत है, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो और उसकी नामधराई हो। अगर हमें उसे इनकरेज करना है तो उसे हमने जा कर के अकेले में, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ी अच्छी सेइंग है, वो कहता है कि रिप्रिमांड इन प्राइवेट एंड अप्रिशिएट इन पब्लिक। जो अच्छी बात है वो पब्लिक में करनी है, जो रिप्रिमांड करना है, कोई भी है, मान लीजिए आपका कोई स्पिरिचुअल सन या डॉटर है, आपका कोई भाई है मसीह में, आपने उनके साथ जाके अकेले में उस बात को करना है ताकि वो उसमें प्रोत्साहित और करेक्शन ले। नेक्स्ट देखते हैं 16 एंड 17। क्योंकि पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। राइट। तो क्या है, आई से देन वॉक इन द स्पिरिट। अब वॉक इन द स्पिरिट का मतलब क्या है? अगर मैंने 6 घंटे प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद दोबारा मैं वही काम करने लग गया जो मैं कर रहा था, तो फिर वो क्या है कि हम उसी की तरह है जिसने शीशे में अपने आप को देखा और मुड़ते ही भूल गया कि वो कैसा दिखता है। तो वॉक इन द स्पिरिट है कि हमें निरंतर आत्मा में रहना है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है, हमारे वर्ड्स को, हमारे एक्शंस को, बिहेवियर को, कैरेक्टर को। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन फरीसी और सदूसियों की तरह बन जाए जो प्रार्थना तो बहुत घंटे कर रहे हैं, बाइबल उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक आती है, लेकिन कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हुआ। एंड यू शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। हम आगे लस्ट ऑफ द फ्लैश को देखेंगे। लस्ट ऑफ द फ्लैश मैं ये भी मानता हूँ कि जब जो हमारा मन कर रहा है, जब हम उसे करते हैं बिना प्रेयर के, वो भी लस्ट ऑफ द फ्लैश है। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो विदाउट प्रेयर, दैट इज लस्ट ऑफ द फ्लैश। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कि दुनिया में ये होता है, ये ठीक है, तो वो भी लस्ट ऑफ द फ्लैश ही है। कई हम चीज़ें ऐसी कर रहे हैं सिर्फ फ्लैश को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे वो धार्मिक काम ही है ना, वो जो एक रिलीजियस काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें फास्टिंग में जा रहे हो लेंट डेज में, है ना, जो एक रिलीजियस काम है, आप सेटिस्फाई हो रहे हो फ्लैश में। अगर आप देखो तो मुस्लिम्स भी हर महीने, हर साल फास्ट रखते हैं 30 दिन के। क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? जो आपकी प्रेयरफुली जो आपने काम करना है, फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट, हर किसी को फास्टिंग करनी चाहिए। 40 डेज फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 40 डेज वही डेज हो जो दुनिया कर रही है। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है वो करो, अगर आपकी परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कोई और दिन रखो तो कोई और दिन रखो। 40 डेज फास्टिंग में जाओ आप, लेकिन नॉट टू सेटिस्फाई योर फ्लैश। फॉर द फ्लैश लस्ट्स अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश। जिस भी चीज़ में आप अंदर घमंडी हो रहे हो वो आत्मा की तरफ से नहीं है, क्योंकि आत्मा ने आपको दीन करना है। जहाँ आपको काम लग रहा है कि मैंने ये काम कर दिया और ये बहुत अच्छा काम है, तो वहाँ मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको और दीन करेंगे, आप करते भी रहोगे और तब भी आप डरते रहोगे क्या मैंने ये सही करा है कि नहीं करा है ना, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के हमेशा बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हो। जैसे एबल जो था, हबेल जो था, उसकी क्यों भेंट ग्रहण करी गई? क्योंकि उसने बेस्ट दिया अपना, डरते हुए कांपते हुए। अगर आप देखो तो उसने कई सारे पहलौठे अलग कर दिए थे, उसने बहुत सारे कि ये नहीं अच्छा होगा तो ये वाला अच्छा होगा, ये नहीं अच्छा होगा तो ये, बेस्ट देना है मैंने परमेश्वर को। एंड दीज आर कॉन्ट्ररी टू वन अनदर। क्या है? फ्लैश स्पिरिट के और स्पिरिट फ्लैश के अगेंस्ट रहती ही रहती है, क्योंकि हम क्या है, हम जो करना चाहते हैं, जैसे पौलुस भी कहता है मैं वो करता हूँ जो नहीं करना चाहता और वो नहीं करता जो करना चाहता हूँ। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं कई बार हम नहीं कर पाते, हमारा फ्लैश कई बार वीक है। आपने सोचा कि मैं हर संडे जो है वो फास्टिंग रखूँगा, और फिर क्या, आपकी बॉडी ने आपका साथ नहीं दिया, एक दिन आप बीमार हो गए, कुछ हो गया, आपको खाना पड़ा। जो फ्लैश है वो वीक है। फ्लैश की स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम स्पिरिट में भरे रहें। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास बीमारी ना आए, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें हम परेशान हो, तो हमें आत्मा में भरे रहना ज़रूरी है। वो एक टाइमली चीज़ नहीं हो सकती कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं आत्मा में हूँ और बाकी टाइम में सारा शरीर में हूँ। अच्छी बात यह है अगर आप शरीर में भी आ गए तो परमेश्वर आपको क्षमा करके दोबारा खड़ा करेंगे,
लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है वो चीज़ें मैटर करती है. सो दैट यू डू नॉट डू द थिंग्स दैट यू विश. इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ. क्या आप करना चाहते हो या करना ही नहीं चाहते? अगर हम कंफर्टेबल हो गए उसी लाइफ में जो हम जी रहे हैं तो हम करना ही नहीं चाहते. अगर हम मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी, मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, और वो हमसे सिर्फ छोटी सी चीज़ मांगता है कि हम उसके साथ आत्मा में बने रहें, और वो भी हमारी भलाई के लिए और राज्य की बढ़ोतरी के लिए. जिनके जो सगे भाई बहन हैं अपने भाई बहनों को हमेशा चाहते हैं कि उन्नति हो उनकी, वो बच्चे वो आगे जाए. तो मसीह जब हमारा पिता है तो हम सब आपस में सगे भाई बहन हैं. चाहे हम किसी कंट्री में हैं, किसी रीजन में हैं, कोई भी मान लीजिए कि कोई ईरान में अगर बैठा है और वो इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो इजराइल में बैठा है वो ईरान के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो ये ही मसीहत है. अगर दो कंट्रीज़ की लड़ाई है और आप भी उस लड़ाई में शामिल होकर एक दूसरे को हेट कर रहे हो, तो आप फिर मसीह की संतान नहीं ठहरे. आप फ्लैश को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप उन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हो जो लोग करते आए हैं. 5:18. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो. राइट. तो व्यवस्था जो है उसके अधीन हम नहीं रहेंगे अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि जब आत्मा हमें चला रहा है तो हमें ये नहीं फर्क पड़ता कौन इसे ठीक कह रहा है और कौन इसे गलत कह रहा है. हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर जो कर रहे हैं वो ठीक है, और परमेश्वर एक पूरा झुंड ऐसा तैयार करा हुआ है परमेश्वर ने. जो लोग आत्मा से चल रहे हैं वो इकट्ठे होकर जानते हैं कि इसने जो डिसीजन आत्मा में लिया है वो ठीक है. दुनिया के लिए वो डिसीजन गलत हो सकता है. जैसे मैं पिछली बार भी शेयर कर रहा था कि एक प्रॉफिट है ना, उनकी बहुत लिमिटेड इनकम है, और परमेश्वर ने बोला कि आप अपना इतना हिस्सा बो दो, है ना, जो 10% से बहुत ज़्यादा था. अब क्या है कि उन्हें एक बार को लगा भी कि मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन उन्होंने वो हिस्सा बोया. क्यों? क्योंकि वो आत्मा से चलाए चले. अगले दिन उन्हें किसी का कॉल आया, और वो भी साउथ इंडिया से, और उन्होंने बोला कि मुझे परमेश्वर ने बोला, और वो आर्मी में थे. कहते हैं कि आर्मी में हम पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, और सबको बोल रहा था हाँ ठीक है. कहते मैं जानता हूँ कि आप कह रहे हो सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि इतना मैंने आपके जीवन में बोला है. परमेश्वर को हमारा ख्याल है, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं. जो वो कह रहा है कि तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है. हमने चिंता नहीं करनी, लेकिन हमने आत्मा में चलते रहना है. और आत्मा में हम चलेंगे, वो सिचुएशंस भी आएंगी जो थोड़ी सी दुखदायक होंगी, वो सिचुएशंस भी आएगी जब हमारी टेस्टिंग होगी, रिफाइनिंग बाय फायर होगी, जो थोड़ा सा उस टाइम पे आपको अंदर वो घुलोगे आप. लेकिन वो भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोशन जो है उससे होगा, विश्वास उससे ही बढ़ेगा. अगर छोटी छोटी चीज़ में परमेश्वर हमें निकालते रहेंगे, हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा. विश्वास हमारा जब बढ़ेगा जब बड़ी परिस्थिति आएगी, और हो सकता है हम शुरू में एक बार को उससे डर जाए, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना में जाएंगे तो हम उससे विजयी होकर निकलेंगे विद द कॉन्फिडेंस दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन. तो हम डरते हुए जाएंगे कि शायद हमारे साथ कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना से हम निकलेंगे इस विश्वास के साथ कि कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा. तो वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब हम आत्मा में चलेंगे. उसके लिए हम उसके व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकते. गलेशियंस 5 का 19 to 21. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विध्रम, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं. इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे. Now works of the flesh are evident, ठीक है, which are adultery. तो हम अपने अपने आप को हमें जांचना ज़रूरी है. क्या हम व्यभिचार में हैं? क्या हम गंदे काम करते हैं? गंदे काम क्या क्या है कि किसी के साथ हम गलत कर रहे हैं, हम मुंह से जो गंदी बातें बोल रहे हैं, हम किसी को देख के कोई गंदी बात बोल रहे हैं, वो सारी किस चीज़ में आती है? व्यभिचार में आती है वो, है ना. अनक्लीननेस, ठीक है, लोच पर हम गंदे भद्दे मजाक कर रहे हैं बैठे हुए, और कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं. मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से बनी हुई मूर्ति की पूजा कर रहे हो. आप अगर पैसे की पूजा कर रहे हो, या अपनी जॉब की पूजा कर रहे हो, अपने परिवार की पूजा कर रहे हो, किसी भी चीज़ की पूजा कर रहे हो, तो वो मूर्ति पूजा में आएगा. टोना कि ये क्या है जी, ऐसा करो, ये छींक आ गई, ये टक्कर लग गई, दोबारा सिर पे टक्कर मार दो, है ना, छींक आ गई, घर से बाहर मत निकलो. कोई ऊपर से टाप गया, वापस से टाप नहीं तो हट हाँ, जाए. वापस से टाप. ऑल दीज थिंग्स क्या है? ये हर तरह का क्या है? ये टोना है. फिर क्या गया? बैर.
हमारे को ये अलाउड नहीं है कि हम किसी से बैर रखें। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे कामों के अनुसार हमें नरक ही मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और हमें क्या सिखाया कि माफ करो। परमेश्वर ने क्या बोला उस क्रूस से? Forgive them for they do not know what they're doing। इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो जिसने हमसे हमारे साथ गलत भी करा है, हम उससे बैर नहीं कर सकते, हमें उसे माफ करना है ये जानते हुए कि वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। जितने भी काम शरीर में होंगे उसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई कॉन्शियस से होगा, कोई विवेक से होगा। शरीर के सारे काम गलत ही होंगे। तो जिसने बुरा करा है उसे माफ़ करना ज़रूरी है। जब हम पाकीशा लेने जा रहे हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, रेकन्सिलिएशन करें, उनके साथ क्या करें, अपना दोबारा उनके साथ मेल मिलाप करें, है ना। अब वो नहीं करना चाह रहे, दैट इज़ डिफरेंट, बट आपकी तरफ से शुरुआत हमेशा होनी चाहिए। अब ये ना हो कि आप सारे टाइम किसी के घर के बाहर बैठो, जब तक मिलाप नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। वो कहते हैं मैंने तो बात ही नहीं करनी, वो तो शरीर में ही चल रहा है। लेकिन आपने अपनी तरफ से वो करना है, आपने अपने मन में माफ़ करना है। और जहाँ आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो वहाँ आपने परमेश्वर से मदद मांगनी है। जहाँ आप ऐसी चीज़ में जिससे नहीं छुट पा रहे हो तो आपने वहाँ पे परमेश्वर से मदद मांगनी है। मैं इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे मैं दुआ से निकला हूँ। तो दुआ जो है वो हमें हर चीज़ से छुटकारा देती है। और कोई सही दुआ, कोई गलत दुआ नहीं होती। कोई ऐसी दुआ नहीं कि ऐसे आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। जैसे आप एक पिता से बात करने जाते हो कि आप डिसाइड करके जाते हो सबसे पहले मैं पिता से ये कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा, फिर मैं उससे बात करूँगा। नहीं, एज यू टॉक टू योर फादर, दैट इज़ हाउ यू टॉक टू गॉड। कि परमेश्वर मुझसे ये नहीं हो रहा, पिता मैं ना ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर क्या, पिता हेल्प करेंगे, ठीक है मैं ऐसे करता हूँ तेरे साथ, है ना। सिमिलरली जो हमारी रिलेशनशिप पिता के साथ है वो ऐसे ही पिता है। झगड़ा, एक क्रिश्चियन लाइफ में झगड़ा नहीं हो सकता। हम लड़ नहीं सकते, हमारा काम है सहने का। तभी क्या, जिसके एक गाल पे थप्पड़ मारा जाए वो दूसरे गाल को आगे करे। अपने भाई का धर्म क्यों नहीं सह लेते? तो झगड़ा जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। कोई हमें कुछ बोल रहा है, हमने सुनना है, प्रार्थना करनी है। जब आपको कोई कुछ बोल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करो और देखना आपका पेशेंस कैसे बढ़ता है ना। तो आप झगड़ा नहीं कर सकते। ईर्ष्या, है ना, एनवी, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, एक भाई से बात हो रही थी, हमारे रिलेशन में ही है वो, और उनकी जो रियल सिस्टर है वो भी क्या नाम है प्रार्थना करती है, लेकिन वो पवित्र आत्मा को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रही है। वो मेरे भाई को फ़ोन करके बोलती है, मेरे कज़न को, कि मुझे ना होली स्पिरिट ने बताया है कि तूने अपना जो घर बनाया है वो शो ऑफ करने के लिए बनाया है। तो जब मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होली स्पिरिट कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही वो वाली बात है, एक बहुत ही गलत बात है। और मैंने कहा जब हम किसी को बताते हैं कि तुमने घर बनाया तो हम खुश होके, है ना, ये एक गवाही देते हुए बनाता है कि एक बच्चा जिसका बाप नहीं था, जिनके पास कोई फाइनेंसेस नहीं थे, उस बच्चे ने बिना ट्यूशन के कैसे अपना इंजीनियरिंग क्लियर करी और कैसे एक घर को बनाया। वो एक गवाही है। हमारा क्या काम है? हमारा इनकरेज करने का काम है, हमारा खुश होने का काम है। अगर हमारा भाई तरक्की करेगा तो उसमें हम आनंद मनाएं, ईर्ष्या नहीं हो सकती। परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो एग्जैक्टली वो है जो आपको मिलना चाहिए था। हम जिस सिचुएशन में उसमें सेटिस्फाइड रहना ज़रूरी है। जब हम सोचते हैं कि मेरे पास कम है, मेरा कल क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरा तो इतना बुरा हो रहा है, तो हम और ज़्यादा गिरते रहते हैं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि एक यानी ये सेकुलर स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, आई थिंक मूसा था। मूसा जो था वो परमेश्वर के पास जा रहा था, और उसे क्या हुआ कि एक आदमी ने बोला कि, कहता आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। वो बहुत अमीर आदमी था। तो उसने मूसा से कहा कि परमेश्वर से कहना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे अब और मत दे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत कुछ मुझे दे रखा है, मुझे और मत दे। थोड़ी आगे गया, थोड़ी आगे एक आदमी था जो बिल्कुल बीमारी में पड़ा हुआ था, है ना, वो बिल्कुल गरीब। तो उसने मूसा से कहा कि परमेश्वर से कहे भाई कि देख मेरी क्या हालत है, मेरे पास कुछ दे ही नहीं रखा, मुझे कुछ दो, मेरे मेरे को अच्छी हेल्थ दो, मुझे वेल्थ दो, मुझे मुझे अच्छा परिवार दो। और मूसा गया, मूसा ने जाके परमेश्वर से बोला कि एक ये आदमी है, उसने वो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि बुरी हालत वाले का पहले बोलेगा, है ना, कि वो बहुत बुरी हालत में है। और वो कहता है कि परमेश्वर से बोलो कि मैं मेरे को चंगाई दे, है ना, मुझे कुछ पैसा दे, मुझे परिवार दे, मैं इतनी बुरी हालत में हूँ। तो परमेश्वर कहता है जब तू वापस जाएगा उससे बोलना कि कंप्लेन करनी बंद कर दे। कंप्लेन करनी बंद कर देगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। कहता है एक और आदमी है,
उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे और मत दो। कहते उससे क्या धन्यवाद करना बंद कर दे। जब हम धन्यवाद करना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर देना बंद कर देता है। जब हम कंप्लेन करते रहते हैं तो परमेश्वर जो है उसे भी परमेश्वर मुंह फेर लेता है। क्योंकि जब जब इसराइलियों ने कंप्लेन करी है ना, हम देखते हैं कि इसराइलियों ने कंप्लेन करी, उसके बाद अमेरिकाइट्स के साथ जो वो युद्ध हुआ उसमें बीच बीच में वो हार भी रहे थे। जब हारे होंगे तो लोग मरे भी होंगे, है ना। तो धन्यवाद करना हर सिचुएशन में ज़रूरी है। जो परमेश्वर ने हमें दे रखा है वो परफेक्ट है। पौलुस क्या कहता है, मैंने बहुतायत में भी जीना सीख लिया है और कमी में भी जीना सीख लिया है। अगर आप देखो तो एक दाऊद भी एक प्रॉफिट था जिसके पास सब कुछ था, है ना। और यिर्मयाह भी एक प्रॉफिट थे जिनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। तो वो है कि हमारी इस यहाँ पे जो लाइफ है वो मैटर करती नहीं। मैटर ये करता है कि जो काम हमें दिया गया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रोध, एंगर, है ना। अब जैसे क्रोध में बहुत सारे जैसे पास्टर्स होते हैं, उन्हें बोलो कि गुस्सा आ गया तो कहते हैं बाइबल में लिखा है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध जो है वो किसका यहाँ पे वो दे रखा है, ये कि शरीर का काम दे रखा है ना। तो जब एंगर में आ रहे हैं, हमें हाथ के हाथ प्रेयर में जाना है, उसी टाइम आप स्पिरिट में प्रेयर करनी शुरू कर दो। क्योंकि क्रोध क्या है, वो क्या होगा, वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देगा। क्रोध जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। विरोध, हमारा काम ही नहीं है किसी का विरोध करने का। सच्चा न्यायी एक है, वो कौन है, परमेश्वर। हम में से कोई भी विरोध नहीं कर सकता। विरोध करना हमें अलाउड नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ है हमें उसे प्रार्थना में रखना है, जिसके लिए है उसे प्रार्थना में रखना है। ठीक। फिर आगे आपका फूट, है ना। अगर हम देखें तो ये दिस इज प्रोवर्ब 6, दिस 6 थिंग्स विच द लॉर्ड हेट्स, 7 दैट आर डिटेस्टेबल टू हिम। तो उसमें अगर आप आखिरी देखो तो ये है कि जो डिटेस्टेबल है वो क्या है, कि वो जो दो भाइयों के बीच में लड़ाई कराता है। तो फूट डलवाने के काम से परमेश्वर घृणा करते हैं। फिर क्या है, विधर्म, है ना। विधर्म जो है कि जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो धर्म के खिलाफ है, जो एक ऐसी चीज़ चलती आ रही है, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे कुछ भी। ऐसे हम किसी की शादी में गए, उस शादी में क्या बोला उन्होंने कि मैं वहाँ पे वो था, फूफा जिसे बोलते ना। तो मेरे को क्या करा उन्होंने, एक वो तेल की कटोरी दे दी, उसके अंदर एक पाम की लीफ डाल दी, कहते 7 बार इसके सिर पे करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये, है ना। ये जो चीज़, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सॉरी। तो ये जो चीज़ें हैं हमें इनसे बच के रहना है। डा, है ना, जलन करना, या डा करना मतलब कि ये जलन भी इसके लिए ठीक वर्ड नहीं होगा। किसी को देख करके चाहना, जैसे कवटसनेस बोलते हैं ना, कि मुझे भी ये चाहिए। फिर क्या है, मतवालापन, शराब पीना। शराब पीना जो है वो लिखा है कि उसकी धार को देखना भी गलत है। जब हम शराब पीते हैं तो क्या होता है, हम अपनी मर्जी से अपने आप को एक स्पिरिट के हाथ में देते हैं। क्योंकि शराब को क्या बोलते हैं, स्पिरिट्स बोलते हैं उन्हें। आप अपनी मर्जी से अपने आप को एक स्पिरिट के हाथ में दे रहे हो। फिर आप क्या है कि जब गलत कर रहे हो तो अगले दिन आप कह रहे हो वो तो स्पिरिट के उसके इंटॉक्सिकेशन या अंडर स्पिरिट हो गया। तो स्पिरिट को तो आपने जान के अपने आप को हाथ में दिया था ना। जब वो स्पिरिट आपके ऊपर कंट्रोल लेगी तो वो आपसे गलत करवाएगी। वो कुछ ऐसी बातें बुलाएगी जिससे आपकी नाम धराई होगी। वो ऐसे काम कराएगी जिससे आपकी नाम धराई होगी। जो शराब है उसका मेन पर्पज़ है आपकी जो कैरेक्टर है उसे ख़राब करना। फिर लीला क्रीड़ा, ठीक है जी, गलत चीज़ें करना, गलत लोगों के साथ गलत चीज़ें करना, गलत चीज़ों में पड़ना, और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई कर रहा है ना, तो उसमें उससे निकलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें इन चीज़ों से छुटना ज़रूरी है। चाहे कोई ड्रिंक कर रहा है, किसी का कोई गलत देख रहा है, गलत बोल रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, जलन रखना है, तो उसे हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है। तो परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मुझे इससे छुटा। कि मैं, अगर आप खुद नहीं छुट पा रहे तो बोलो मैं इससे नहीं छुट पा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझे छुड़ा सकता है। और फिर उस चीज़ को ध्यान रखना है, उस आपने आत्मा में चलते रहना है। ऐसा ना हो कि प्रार्थना करी और फिर शरीर में आके हमने फिर वही चीज़ें करनी शुरू कर दी। हम क्या हैं, हम वारिस हैं। हमने उस नए यरूशलेम में प्रवेश करना है जहाँ पे अनंत जीवन है, या हमेशा का जीवन है। ये जो जीवन है ये छोटा जीवन, मैं कई बार बोलता हूँ अब मैं 45 ईयर्स का हो जाऊँगा इस साल, मुझे नहीं पता लगा कैसे निकले वो साल। और इधर मेरी मम्मी बैठी है वो 78 की, उन्हें भी नहीं पता होगा कैसे निकले साल।
हमें लगता है कि टाइम लंबा है, लेकिन बहुत जल्दी टाइम बीत जाएगा। जो अनंत टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी तैयारी करना इन सालों में बहुत ज़रूरी है। 22 और 23 भी पढ़ दें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। है ना। स्पिरिट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है? लव, है ना, प्रेम होगा। जॉय, इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर मैं जॉय में नहीं हूँ तो मेरे मेरे अंदर कहीं कोई शरीर का वो तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं पीस में नहीं हूँ तो कहीं मैं शरीर की कोई बात तो नहीं सोच रहा। अगर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो मेरे अंदर शरीर की चीज़ें हैं। अगर मैं दयालु नहीं हूँ, अगर मान लो मेरे को किसी गरीब को देख करके, किसी विकलांग को देख के तरस नहीं आ रहा, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं कोई गलती है। गुडनेस, क्या मैं उन कामों को कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे कराना चाह रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार हूँ, है ना? क्या मेरे अंदर एक जेंटलनेस है? क्या मेरे शब्दों के अंदर, मेरे लहजे के अंदर वो जेंटलनेस है? मेरा सेल्फ कंट्रोल कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं लोगों के साथ लोगों जैसा हो जाता हूँ? क्या मैं उस जो मेरी मिरास है उसको स्मरण रखते हुए सब कुछ ठीक तरह कर पा रहा हूँ? और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को वो इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं, और ये जो है ये भी एक ऑर्डर में है। जब हम प्रेम में चलते हैं तो अपने आप आनंद आता है। जब आनंद होता है उसके साथ पीस आता है। जब पीस आपका बढ़ेगा तो आपको सहना आने लगेगा। उसके बाद क्या है आपका, आप दयालु अपने आप हो गए। तो ये सारा जो है ये एक ऑर्डर में है, सेल्फ कंट्रोल एंड में, है ना। तो धीरे धीरे करके आप इसमें बढ़ते रहते हो। ये इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है, रोज़ जांचना ज़रूरी है, क्या मैं इसमें बढ़ रहा हूँ। कहीं पे आप गिर गए, फिर आप प्रार्थना करो, फिर बढ़ो धीरे अंश अंश करके। तभी वो कहता है कि हम, पौलुस कहते हैं, बदल रहे हैं। 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, कौन? जो मसीह में है उन्होंने, है ना, उन्होंने उसे चढ़ा दिया। तो हमारे को सबसे पहले ये जांचना ज़रूरी है, क्या हम मसीह में हैं? क्या हम उन कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं? क्या हम रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं? क्या हम उससे पूछ रहे हैं कि हमने क्या करना है? क्या हम हर चीज़ को प्रार्थना में रख रहे हैं? क्योंकि कई लोग सोचते हैं ये ऑटोमेटिकली होगा, कि परमेश्वर एक दिन जो है वो सब कुछ बदल देंगे। नहीं, हमें धीरे धीरे करके, जैसे हमने अभी पहले देखा है ना, हमें धीरे धीरे दिखना है। पहले सबसे पहली चीज़ कि क्या मैं प्रेम कर पा रहा हूँ, खास करके उनको जो मेरे साथ प्रेम नहीं कर रहे, वो जो मुझसे घृणा कर रहे, क्या मैं उन्हें प्रेम कर पा रहा हूँ? क्या मैं उस आनंद में हूँ? अगर मैं उस आनंद में बना हुआ नहीं हूँ तो मुझे और प्रार्थना करनी है, उस आनंद के लिए प्रार्थना करनी है। हम सीधा प्रार्थना कर देते हैं, करना शुरू कर देंगे और बड़ी चीज़ों के लिए, लेकिन खुद का जो वो है कैरेक्टर, वो अभी चेंज नहीं हुआ। कैरेक्टर चेंज होना ज़रूरी है। धीरे धीरे करके इन चीज़ों को मांगना शुरू करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करना है, जांचना ज़रूरी है क्या ये चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और फिर क्या है, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएंगी। आप उन्हें क्रूसीफाई करोगे, लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। फिर क्या है, शरीर को आप क्रूस पर चढ़ाओगे और आत्मा में जीना शुरू करोगे। आपका एक फोकस होगा, वो है मसीह का काम करना। एक फोकस होगा उसकी सिद्ध इच्छा को आपके जीवन से पूरी होने देने का। आपका ध्यान फिर उन चीज़ों में नहीं लगेगा जो आपको मसीह से दूर लेके जाती है। 25 to 26। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना तो छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। है ना। तो क्या है, अगर हम आत्मा में जी रहे हैं तो आत्मा के अनुसार चलना ज़रूरी है, आत्मा की सुन के चलना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, हम घमंडी नहीं हो सकते कि मेरे पास ये गिफ्ट है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी प्रार्थना से वो चंगा हो गया और ये हो गया वो हो गया, है ना। जब मेरे को परमेश्वर ये चीज़ें दिखाते हैं, अच्छी बात है, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका हम घमंड नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने हमें किसी के लिए, किसी की उन्नति के लिए कुछ दिया है तो वो परमेश्वर ने दिया है। हम खुद क्या है, मिट्टी ही है, हमारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। किसी को भी छेड़ना नहीं है, किसी को हमने वो नहीं करना, उकसाना नहीं है कुछ गलत करने के लिए कि तू तो है ही ऐसे। जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी को बोलो तू बड़ा धर्मी बना फिरता है, तू बड़ी बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ने के बाद ये तेरा, वो काम हमारे नहीं है। वो हमारे साथ हुआ है, हमें पता है,
है ना, कि वो बुरा लगता है, उससे आपकी इंकरेजमेंट नहीं होती, उससे आप डिस्करेज होते हो। हमारा काम क्या है? इनकरेज करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें कि एनविंग वन अनदर, हम एक दूसरे से वो नहीं रख सकते, हम एक दूसरे से डाह या फिर एनवी नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या है कि जिसे सुबह 9 बजे हायर करा उसे भी एक वो सिक्का मिला, जो शाम को 5 बजे हायर हुए उसे भी एक सिक्का मिला। परमेश्वर का जो न्याय है वो एक परफेक्ट न्याय, ही इज अ सोवरेन गॉड, न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो जिसे जहाँ ठहराया है वो बिल्कुल सही ठहराया है, उसकी बुलाहट के अनुसार ठहराया है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और इस दौड़ के लिए परमेश्वर से वो मांगनी है, हमने बार बार सामर्थ मांगनी है कि हमें से अच्छी तरह लड़ पाए। रोमन्स 8 वर्सेस 12 to 14, रोमियो 8 का 12 से 14। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Beautiful. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह बताया गया है, जब हम शरीर के कामों को कर रहे हैं तो हम मरेंगे। क्या हम में से कोई मरना चाहता है? हम में से हर एक क्या चाहता है कि हम जिएं। हम में से हर एक चाहता है कि हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करें, हम यीशु को फेस टू फेस देखें, हम उस हेवन को में एंटर करें, और जो जो बातें आज तक हमने नहीं समझी वो हम जाके वहाँ समझने वाले हों। हम सब ये चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलें। अब आत्मा के अनुसार चलने के लिए क्या है कि शरीर की क्रियाओं को मारना होगा। शरीर की क्रियाएं कैसे बढ़ती है? आत्मिक क्रियाओं से। आत्मिक क्रियाएं क्या है? हम इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, हम संगति में जा रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप जो है वो बड़े बड़े बॉन्डेजेस को ब्रेक करती है। जो यहाँ पे वर्शिपर्स हैं वो जानते हैं कि इट इज़ सच ए ब्यूटिफुल गिफ्ट। तो हमने उन चीज़ों को करना है। जो हमारा टाइम, मान लो मोबाइल पे टाइम लग रहा है, किसी और चीज़ में टाइम लग रहा है, ठीक है, बातें करने में टाइम लग रहा है, कुछ शॉपिंग करने में टाइम लग रहा है, किसी भी चीज़ में टाइम लग रहा है, उस टाइम को निकाल के हमने उसे वर्शिप में लगाना है, उसे बाइबल पढ़ने में लगाना है। अगर आप रोज़ बाइबल पढ़ते रहोगे लगातार, है ना, तो बोर हो जाओगे। आपको हर चीज़ जो आत्मा अगुवाई कर रही है, आत्मा को पता है कि आपकी को उस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप वो करते हो। जब बाइबल पढ़ने का टाइम है बाइबल पढ़ोगे, जब प्रार्थना करने का टाइम है प्रार्थना करोगे, जब वर्शिप करने का टाइम वर्शिप। आपने टाइम दे दिया, ये डेडिकेटेड टाइम है, मैं परमेश्वर को दूंगा ही दूंगा। अब मैं ये देखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर कोई वो कमिटमेंट नहीं है तो आप सुस्त भी हो जाते हो, आपका शरीर क्या कहता है, थक गए हो, सो जाओ, है ना। आप अपने ऐसे वो बनाओ, कमिटमेंट्स बनाओ कि ये टाइम जो है परमेश्वर का टाइम है, और लोगों को 4 लोगों को अपने साथ लो कि हम यहाँ पे परमेश्वर को समय देंगे। और फिर क्या है, उसके बाद आपका अलग से समय भी निकलेगा, क्योंकि एक जो टाइम आपने ग्रुप में दिया है, फिर आप अलग परमेश्वर के पास बैठना भरना चाहोगे। तो फिर क्या है, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दीज आर सन्स ऑफ गॉड। हम क्या है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री जब कहलाएंगे जब हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। हम अपने अगर बुद्धि में बुद्धिमान होके अपने जो काम है, जो मेरे चित्रों के समान है, उनके ऊपर अगर हम रिलाय करके सोचेंगे कि हम पुत्र और पुत्री कहलाएंगे, तो हो सकता है कि हम लज्जित हो। गलेशियंस 3:26-21, गलातियों 3 का 26 से 29। क्योंकि तुम उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम कैसे परमेश्वर की संतान बनते हैं? विश्वास के द्वारा। क्या हम में से हर एक ये विश्वास करता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे अंदर हमारे कमियां हैं चाहे नहीं है, हम उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराए हैं।
अगर हम इस विश्वास को करते हैं और हम मसीह के करीब जाते हैं तो मसीह हमें अपने लहू से धो के शुद्ध करते हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हम में से हर एक के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। जितनों ने बपतिस्मा लिया है, जो पानी में जाके मरे और उसके बाद जिंदा होके बाहर निकले, वो सब क्या है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है, उनका जीवन बदल गया है। और क्या है, उसके बाद फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सरदार है, ठीक है, और ये कोई और वो है, ये यहूदी है, ये यूनानी है जैसे यहाँ पे लिखा है। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। हम सब क्या है, हम एक हो गए। इस कंट्री उस कंट्री कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आदमी औरत कुछ मैटर नहीं करता। इवन जो यूनक्स हैं, है ना, वो भी हमारा एक पार्ट है। अगर हम देखते तो फिलिपुस ने क्या करा, यूनक को जा करके प्रीच करा और उसने वहाँ पे बपतिस्मा दिया। पानी भी वहीं पे मिल गया और उसने वहीं के वहीं उसे बपतिस्मा दिया और परमेश्वर का धन्यवाद करता गया। एंड इफ यू आर क्राइस्ट देन यू आर एब्राहम सीड एंड heirs अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। और क्या है कि हम अपने विश्वास के द्वारा किसकी संतान ठहरते हैं? अब्राहम की संतान ठहरते हैं। क्यों? मसीह में हम उसी वंशावली के साथ जोड़ दिए गए जो परमेश्वर ने चुनी थी, जो परमेश्वर ने अपने लिए अलग करी थी। अब क्या है, अब हमारी रगों में हमारा नहीं परंतु मसीह का खून दौड़ता है। तो क्या है, हम उसके साथ संगी वारिस हैं। अब हम उसके साथ को एयर्स हैं हेवन के। फिलिपियंस 2 चैप्टर वर्सेस 5 to 11, चैप्टर 2 वर्सेस 5 to 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक जिस मिनट, परमे धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, है ना। हाँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा है कि नहीं? हमें इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है। और कई बार ऐसी टाइम आएगा जब हमें अपने मैं को मारना होगा, वो ज़रूरी है। जब तक हमारा मैं नहीं मरेगा, जब तक हमें किसी की बात का बुरा लग रहा है, जब तक हम रिएक्ट कर रहे हैं, तब तक मैं नहीं मरा। तो मैं का मरना ज़रूरी है। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। है ना। तो क्या है कि दो जो मसीह है वो परमेश्वर के तुल्य थे, वो परमेश्वर ही थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने आप को दीन करा। तो चाहे हम मसीह के वारिस हैं, हमें अपने आप को दीन करना ज़रूरी है। चाहे मसीह ने हमें सब कुछ वो गिफ्ट्स दे रखी हैं, ठीक है, वो फ्रूट है, कुछ भी है, वो दीन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर दीन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? घमंडी हो जाएंगे। और घमंडियों का परमेश्वर क्या करते हैं? विरोध करते हैं, है ना। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। है ना। अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। हम भी क्या है, हम सारे दास हैं। चाहे हम परमेश्वर के साथ को एयर्स हैं, लेकिन तब भी हम दास हैं। हमारा काम क्या है? सर्व करने का। आगे बढ़ दे। इस कारण परमेश्वर ने उसको और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो क्रूस की मृत्यु थी वो कैसी मृत्यु थी? वो बहुत ही एक शेम वाली मृत्यु थी, है ना। एक बहुत ही घृणित मृत्यु थी। अगर हम देखते तो ये भी लिखा कि जो काठ पर चढ़ाया जाए वो क्या है? श्रापित है ना। तो एक श्राप वाली मृत्यु थी जो परमेश्वर ने सह ली। किस में? आज्ञाकारिता में। तो हमारा काम भी क्या है? आज्ञाकारी होने का। क्या कि वो मेमने के लहू के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा उस पर जयवंत हुए और यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु भी सह ली। तो जो शरीर की मृत्यु है वो इम्पोर्टेंट है, वो एसेंशियल है हमारे लिए, ताकि हम मसीह के स्वरूप में आ सके। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ जी, आगे भी बढ़ते कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। आमेन, 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 है ना। तो क्या है कि हमारा सबका एक ही पर्पस है कि हर कोई मसीह के उस
क्रूस की कथा को जाने, वो जाने कि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, वही नाम है जिसमें चंगाई है, वही नाम है जिसमें छुटकारा है, और हर घुटना टिके और हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। उसके लिए हमारा जीवन जो है वो एक उदाहरण का जीवन होना ज़रूरी है। हमारे शरीर में मृत्यु होनी ज़रूरी है, आत्मा के अनुसार चलना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब यहाँ पे एक अपॉइंटेड है, हम एक काम के लिए बुलाए गए हैं, एक योजना के अनुसार हम चल रहे हैं। हम क्या है, मोल लिए गए लोग हैं। तो हम अपनी शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले हों। एक्ट 17:24-31, प्रेरितों के काम 17 का 24 से 31। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब बाइबल जात को इसमें हाँ, मेरे मैं ख्याल से वही वो देख रही हाँ हूँ। हाँ एक्स 17 हाँ 24-31। एक सेकंड। हाँ, 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं। तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हम में यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमेन 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 आमेन। परमेश्वर को हमारी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास अपना अगर एक चीज़ है तो वो है गवाही। हमने उस गवाही को छुपा के नहीं रखना। परमेश्वर जो हमसे करा रहे हैं वो किसके लिए करा रहे हैं? एक उदाहरण सेट करने के लिए। परमेश्वर जो है उसने सब कुछ बनाया हुआ है। दूसरा, जो हाथ की बनाई हुई मूर्तें हैं या हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं उसमें परमेश्वर वास नहीं करते। परमेश्वर, हम क्या है? वी आर हिज टेम्पल। हम में परमेश्वर वास करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें परिस्थितियों में भी कभी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उसके साथ एक हों। और जब तक हम परमेश्वर के साथ एक नहीं होंगे तब तक हम दुनिया में शरीर के अनुसार चलते रहेंगे। तब तक हम कमज़ोर फील करेंगे। हम या तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, किसी कहते हैं हमारा विवेक मर जाएगा, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराना बंद कर देगा, या फिर हम इतने दुख में होंगे कि हमारे अंदर कोई भी करेज ही नहीं होगा कुछ करने का, हमारा हियाव मर चुका होगा। तो परमेश्वर में बने रहना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि जो उसकी उसकी जो योजना है वो एक अच्छी योजना है, वो मेरे लाभ की, मेरे हानि की नहीं है। मैंने मनुष्यों की बातों को सुन के नहीं करना, मनुष्यों की रीतियों पे नहीं चलना। मैंने ये नहीं सोचना कि हाथ की बनाई हुई किसी चीज़ में मनुष्य है, वो परमेश्वर है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे पश्चाताप करना चाहिए, तो आज वो दिन है कि हम उस पश्चाताप को करें, हम उससे माफ़ी मांगे और हम नए हो जाए। क्योंकि जब हम टूटा मन लेके परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो उसे तुच्छ नहीं जानता, वो उसके लिए ग्रहण योग्य है, और वो हमें उन चीज़ों से छुड़ाता है, हमें नया मन और नई आत्मा देता है। और फिर क्या होगा?
फिर वो हमें उन कामों के लिए ऑर्डेन करेगा, अपॉइंट करेगा जो उसने हमारे लिए ठहराए हैं। हमें उसने रॉयल प्रीस्टहुड कहा है। हमारा काम क्या है कि दुनिया के छोर छोर तक जाकर के मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना। अगर हम वो नहीं करने तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं, हम उस शरीर की अभिलाषा में चल रहे हैं और हम अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं। हमारी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है, हम मसीह को इमिटेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे और हम हर उस काम को कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर सेटिस्फाई होता है। लास्ट रेवलेशन 3:21, प्रकाशित वाक्य 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। राइट, तो देखो कितना बड़ा प्रॉमिस है। हम मसीह की प्रतिज्ञा को मानते हैं ना, तो ये क्या है, जो जय पाए। जय हम कैसे पाएंगे? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा, है ना। यहाँ और क्या होगा? अपने शरीर में मृत्यु को सह लेंगे, है ना। उसके बाद क्या है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठाऊंगा। सोचो कि थ्रोन पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बिठाऊंगा। वो थ्रोन जिसके सामने हम जाते हुए कांपते हैं, डरते हैं, उस थ्रोन पे परमेश्वर का वादा है कि वो बिठाएंगे जैसे पिता ने उन्हें जय पाने के बाद उस थ्रोन पे बिठाया। तो हमारा काम क्या है? जय पाने का। हमारा मिले रहना ज़रूरी है, एक दूसरे को इनकरेज करना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है कि हम कैसे आनंद के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इवेंजलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो करते रहने और जल्दी फिर ये टाइम जो है ख़त्म होगा और हम उस ग्लोरी में उसके साथ प्रवेश करेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, दैट इज अबाउट इट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो गैलेशियंस हमारा 5th चैप्टर है और ये जो फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट है, और अभी हम जो फ्रूट्स ऑफ फ्लैश देख रहे हैं, तो मैं अगर इसको इसी चीज को मरकुस में भी लिखा है कि जो मनुष्य के मन में से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। और जो यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट कर रही थी, फ्रूट ऑफ स्पिरिट जो है 9 है, लेकिन ये जो है ये 22 या 29 तक चले जाते हैं। ये जस्ट डबल ऑफ दैट है फ्लैश के। और एक ब्रदर राजकुमार ये बता रहे थे कि ये जो फ्रूट ऑफ स्पिरिट है इसमें 3 या 4 तो हमें बाहर एक प्रैक्टिकल है और बाकी इंटरनल इमोशनल है। तो हमारे प्रभु ये कहता है कि अगर जैसे अभी वचन भी हमने सुना कि हमें आत्मिक रीति में इमोशनली भी बढ़ना है और फिजिकली भी, मतलब वी हैव टू सर्व एंड वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा वचन था। और ब्रांड प्लीज, मेरे बैक स्प्रेन हो गया, उसके लिए प्रेयर करना, कल मैं आराम से चर्च जा सकूं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बस अभी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके एक अगर आप वो देखें कि एक बात जिसमें बैठा हुआ था, तो 12 फ्रूट जो है वो ट्री पे लगे हुए हैं, जो रिवर ऑफ लाइफ है उसके बराबर में 12 फ्रूट लगे हुए हैं। तो जैसे हम जो 3 फ्रूट हैं, है ना, उसमें आप सोचो कौन कौन से। अब मुझे किसी ने कुछ बताया, आप ही परमेश्वर से पूछो और कौन से फ्रूट है ना। जैसे अभी बोला कि 18 फ्रूट है ना, फिर एक ये कि 12 फ्रूट उस पर लगे हुए हैं, वो कौन से 3 एक्स्ट्रा फ्रूट होंगे? 12 है ना उसके ऊपर। तो वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, सोचने वाली। पता हमें जब भी लगेगा जब अपनी दौड़ को दौड़ पाएंगे, पुरस्कार को पाएंगे। और इसमें ना ये जो ये फ्रूट है ना, ये फ्रूट स्पिरिट्स का, इसको हम इजाया 11:2 से भी वो करते हैं, तो वो 12 हो जाते हैं, है ना। स्पिरिट ऑफ विजडम और एक सेकेंड, है ना, परमेश्वर की 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड है वो। हाँ, वो 7 स्पिरिट्स ऑफ द लॉर्ड है। हाँ, तो वो उस स्पिरिट का ये फ्रूट है। लेकिन जैसे विजडम है तो वो भी अ काइंड ऑफ फ्रूट मान लेते हैं, बाकी आगे इतना पता नहीं है। So, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और किसी ने कुछ शेयर करना है? कोई टेस्ट बनी कुछ भी शेयर करना हो? Anything which God has revealed to you during the message? शशि बहन के पास बहुत अच्छी, कहाँ गई वो? यहीं कल पे बोल ही। रही थी बहुत, हाँ बहुत अच्छी टेस्टमनी है।
कल की। वाह वाह, बिल्कुल। एक्चुअली शशि बहन के साथ मैं सुबह हमारे ग्रुप मीटिंग होती है, तो मुझे सब पता चलता रहता है उनका। शशि सिस्टर कहाँ हो? यहीं पे ही है। आपका म्यूटेड है सिस्टर, अनम्यूट करो। मैं कॉल करती हाँ दीदी, जम से की। हाँ सिस्टर, गवाही दे दो जो आपने दिखा। अच्छा अच्छा, चलो। मेरा नाम ज्यादा मत। हाँ जी, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। अब मैं थोड़ी सी है ना लेट हो गई थी दुकान पे, ये ईद वीद थी, वो बिक्री सी वो ज्यादा हो मतलब सही हो गई, तो इसलिए मैं लेट आई थी। आपने जब मेरे पास कॉल करी थी तभी मैं बस आके एकदम बैठ का फोन ही निकाला था, मतलब मैंने वो करने के लिए, चालू करने के लिए, इतने में आपकी वो आ गई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, और आप सबका भी। तो मेरा मतलब गवाही तो बहुत सारी है, कितनी बताऊं, कहाँ से बताऊं। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि हर दिन प्रभु वाकई में अपने बच्चों से बात करते हैं और चिताते हैं और समझाते हैं। तो रात में बताऊंगी, बहुत बड़ा मकान है और उसमें मैं थी, तो बारिश वाली बारिश, बारिश कैसे मतलब? जो आप बारिश रोक दी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि कल की बात थी, तो कल मतलब ईद की वजह से एक दिन पहले ही सामान खरीदते हैं, तो पूरे दिन बारिश पड़ती रही, पूरे दिन बारिश पड़ती रही। और मैं जो मतलब अ, 4-5 दिन के पैसों का मैं सामान लेके आ गई थी, पैसा घर में बिल्कुल भी नहीं था हमारे। तो मैं कह रही मेरी लड़की भी आओगी, अब मैं कहाँ से खर्चा करूंगी प्रभु जी, मेरा तो यही यही जरिया है, बच्चे अपने अपने बच्चों को पाल ले। अब लड़की आती है तो उसमें थोड़ा खर्चा हमें करना पड़ता है। तो मैं बहुत निराश थी, फिर भी मैं कल मेरा फास्ट था तो मैं प्रेयर कर रही थी, तो मैं अपने टिप्टो को लेकर आराधना जो बच्चों के बीच में भजन संहिता है 121, उसमें उसमें ये था कि तुम अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाओ और तुम्हें सहायता कहाँ से मिलेगी, यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो मैं कह रही अब तो बारिश पड़ रही, प्रभु जो होएगा देखा जाएगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी इच्छा पूरी हो ऐसे। और बच्चों ने भी प्रार्थना करी, आराधना करी, गाने गाए, हमने आनंद, मतलब प्रभु में इतने आनंदित थी मैं, फिर भी मैंने सच बता रही हूँ, प्रभु जन कहाँ से और कैसे इंतजाम कर देता है मुझे नहीं पता। और तो मैं थोड़ी सी देर के लिए बारिश बंद हुई, मैं करी चलो, जब 2:30-3 बजे की बात है, तो मैं कहने लगी, मैंने फिर प्रार्थना करी दोबारा, फिर बच्चों ने फिर प्रार्थना की। फिर मैं कहने लगी बारिश के लिए प्रार्थना करो कि बारिश ना पड़े। तो ग्रेसी और सैमी मेरे 6-6-7 साल के बच्चे, उन्होंने प्रार्थना करी। तो परमेश्वर, मैं आमीन करके जैसा खत्म होगी प्रेयर, मैं देखने लगी रील पे आकर, मैं कह रही प्रभु आपका धन्यवाद यीशु, आपने बारिश तो खैर बंद कर दी। और बारिश बंद होते के साथ मैंने थैला उठाया और मैं दुकान पे चली गई। और मेरे पे 20-25 रुपए ऐसे थे, मैंने इनके का भाड़ा दे दिया, मैं कहा उधर का प्रभु करेगा इंतजाम, कोई नहीं। पर जब मैं वहां पे गई, जाने के बाद बारिश इतनी तेज हुई, मैं बता नहीं सकती। पर फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, मैं कह रही जो होएगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मैं बारिश, वो मेरे से वो विश्वासी परिवार था जहाँ मैं बैठी थी, और मैं कहने लगी, अब वो कह रही नो आंटी जी आप है ना, तो आप मतलब शुक्र को आप फास्ट रखते हो और आपकी प्रार्थना हमेशा सुनता है। चलो दुष्ट भी अब अपना काम कर रहा, कोई नहीं, वो पैरों के नीचे हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे प्रार्थना करी 5 मतलब 10-15 मिनट इतनी तेज पड़ा, घुटने घुटने पानी हो गया। उनकी झुग्गी में भी, उधर जिधर मैं, वो दुकान है मेरी, वहां पे झुग्गी में सारा पानी आ गया। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, कोई बात नहीं। तो प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद जो
फिर मेरे से कह लगी नो आंटी जी आज एक बात बताओ, कल बारिश पड़ेगी? मैं कह रही कि नो अब कल बारिश पड़ी तो क्या होएगा, हमारे तो बेचारे बच्चे सारे ठंड में वो हो रहे थे, उनके बच्चे जिनके घर में मैं थी झुग्गियों में, ठंड में सारे। मैं कह रही प्रभु मैं कैसे करूं, अब कम्बल घर से लेने जाऊं, बारिश नहीं पड़ रही और बच्चे ऐसे ठिठर के बैठे। मैं कह रही कोई बात नहीं, मुझे उनके बच्चों की माई को इतना तरस आ रहा था बहुत ज्यादा। तो मैं कह रही हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रार्थना करके आमीन करी, हल्की हल्की होने बारिश वो होगी। तो कह रही आंटी हाँ अब सही तो वो हो गया। और भैया 10 मिनट बाद इतना तेज सूरज निकला, धूप जो कि बिल्कुल घुटा पड़ा था, इतनी तगड़ी मतलब धूप निकली। तो लड़की कहने लगी, वो 4:30 बजे का टाइम था, कि मम्मी कपड़े सुखा दो। मैं कह रही ये कपड़े सूखने वाली धूप नहीं है, ये प्रभु की धूप है, प्रभु ने अपने बच्चों के लिए करी। और मैंने जो मतलब कस्टमर आने मेरे पास शुरू हो गए, बारिश खत्म होते ही। और 600-700 मतलब 300-400 रुपए तो मेरे उधारी में हुए। मतलब 600 का तो एक लड़की ले गई सामान, रुपट्टे उपट्टे ये जैसे मोमडन है ना, वे उधारी में गए। मैं कह रही कोई नहीं वो कल मिलेंगे मुझे, और वे मुझे आज मिले हैं। तो मैं परमेश्वर का इतना बड़ा धन्यवाद देती हूँ, मेरे 600-700 रुपए का कल वहां पे वो सेल हुई। और मैं एक बात और कहूंगी, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का सबसे पहला, और जो प्रभु की दासी है ना विनीता ने, इन्होंने मेरी दुकान खुलवाई थी। और जब मैं मतलब मेरी दुकान पे जब मतलब ऐसे मैं कह रही प्रभु, मैं ये नाम लेती हूँ प्रभु आपकी दासी की दुकान है, मेरी नहीं है ये। और मैं परमेश्वर वाकई में इतना बड़ा काम करता है, उससे ही हमारा गुजारा चल रहा है घर का, है ना। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, इतने अच्छे दास दासी प्रभु ने मुझे दिए, मतलब मुझे चलाने के लिए। और एक बात और कहूंगी मैं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, 1-1.5 घंटे में 600-700 रुपए का मेरी जो नगद मुझे मिल गए। और 600 रुपए का एक लड़की सामान लेगी, वो मुझे आज मिल गए। 400 उसमें 200 रह गए, कोई बात नहीं वो भी मुझे मिल जाएंगे कल को परसों को जब भी मिलेंगे। मैं प्रभु के हाथ में सौंप देती हूँ। आज सारा सामान आ गया, लड़की आने पे अब थोड़ी घनी देर में आ जाएगी छोटी लड़की मेरी। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। और एक बात और कहूंगी, जब मैं रात को मैं सोई और मुझे मतलब ऐसा था मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, ऐसा कह रही थी मैं। और मुझे इतनी गहरी नींद आई है, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, दीदी ने भी नहीं उठाया मुझे कल। तो मेरी 6 बजे आँख खुली, और उसी समय के बीच में इतने सारी मुझे प्रभु ने मतलब मुझे दिखाया मेरे जीवन के लिए। फिर कल की बात और बताऊंगी रात की, कि कोई इंसान मतलब जिस रूम में मैं हूं तो वहां पे आया, और वो गलत हरकत कर रहा। मैं कही प्रभु ये क्या क्या दिखा रहे मुझे। और मैंने जो एकदम डंडा उठाया वो एकदम भागा, वो इतना आवाज मेरी सुन के जैसे मैं सब कुछ बोली थी, तो दीदी वहां पे आ गई, विनीता सिस्टर। ये कह रही क्या है बदतमीज, मतलब ऐसे उन्होंने डांटा बहुत बुरी तरह, कि तुझ में दिखता नहीं, घर में लेडीज है, तू क्यों आई यहाँ पे, क्या कर रहा तू यहाँ। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रभु अपने मतलब मुझे विश्वास है मेरे लिए उस समय प्रार्थना हो रही होगी, है ना। दास दासी दीदी भी प्रार्थना करी होगी क्या पता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो प्रभु के दास दासियां दिखते हैं ना मैं दर्शन में, तो वो एक शत्रुओं को भगा देते हैं, डांटते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने मुझे मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और प्रभु लेकर चल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गवाही जीवन की यही है बहुत सारी। और बिना दवा के प्रभु ने मेरी पथरी भी निकाल ली थी, बिना दवा के 1 रुपए की मैंने दवा नहीं खाई। और ना मुझे ये पता था मेरा पथरी पर दर्द ऐसा होता था मेरा, जो मैं बता नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, बिना दवा के पथरी मेरी निकली, मुझे 1 रुपए की दवा भी नहीं खानी पड़ी। जो मैं प्रभु से कहती हूँ ना, बस प्रभु से मैंने ये कहा था, प्रभु ये छोटा सा दर्द, ये तो छोटा सा दर्द है, आपने तो मुर्दा जिंदा किए। बस ये कह मैं सो गई। और मैं कहा अब जब भी दर्द होता, जब कहती थी अब टेस्ट करूंगी, अब टेस्ट करवाऊंगी, लेकिन प्रभु ने मेरा 1 रुपया भी जाने नहीं दिया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। और मुझे इतना अच्छे दास दासी परमेश्वर ने दिए, जो मुझे लेकर चल रहे वचन से, हर चीज से। और विनीता सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे, अगर मैं मीटिंग में कहीं नहीं जुड़ती हूँ ना, मेरे पास क्या तो कॉल करेंगी, क्या मैसेज कुछ भी मतलब बोल के कह देती हैं। तो उसी समय मुझे मतलब कहने का मतलब
आज यही दिखा है प्रभु ने कि उनके द्वारा प्रभु मुझे लेकर चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेस्टमनी, बहुत बढ़िया टेस्टमनी। और किसी की ने कुछ शेयर करना है? आवाज आ रही है आपको सबको? जी आवाज आ रही है। एक वो देंगी, जो मेरी बेटी है ना बड़ी, वो भी आ रही। मैं आपको बताऊं, दोनों बेटी मेरी आ रही थी। उसके बेटे पेपर हुए तो छुट्टी हो गया 15 दिन की, तो वो लड़की भी आती, लेकिन वो जो मैम है उसने नहीं आती। वो क्यों? उसके घर में 2 की डेथ हो गई, और एक सबसे जो उसके ताऊ का कौन बोलते हैं, तायसरा, मतलब उसके जो पति का ताऊ है ना, उसके बेटा उन्हीं का वहीं रहता है। वो हॉस्पिटल में है, और बहुत बहुत जो पीलिया हो जाता है ना, पीलिया बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो पीलिया विलिया नहीं है, वो दुष्ट आत्मा वो उसे परेशान कर रही है। उसने वो पहले जो उस लड़की आई थी ना, उसने बोला कि 2 खत्म हुई हो गई है, और एक और अभी जाने वाला अगले उसमें। पर मैंने तो रात भी प्रार्थना करी। कल मुझे बहुत बोझ आया था, बहुत प्रभु के सामने रोई। प्रभु उसको ठीक कर दे, उद्धार कर दे प्रभु उस घर का। पिताजी दया कर उस घर पे, और ऐसा ना होए कि 2 चले गए, ये बच्चा भी चला जाए। तो प्रार्थना करना। वो दामाद मेरा कहने लगा कि कहने का उसने वो नहीं हुआ। मेरी बेटी कहने लगी मेरे से, मम्मी प्रेम ये कह रहा, मैं अकेला कैसे रहूंगा, और तुम नहीं रहने के, तो अब तो मैं अपनी ड्यूटी से आता हूँ, तुम्हारे उसमें लग जाता हूँ। तुम नहीं रहोगे तो पता नहीं मेरे मन में क्या क्या विचार शैतान डालेगा। तुम जाओ मत। तो मैंने मना कर दी कि बेटा तू मत आ, अपने वहीं रह, कोई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह, प्रार्थना करना प्रभु वहां पे इस सारे शत्रुओं को प्रभु नष्ट करें। बिल्कुल जो बिल्कुल। हाँ जी। और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट? सिस्टर कहाँ की थी? सहारनपुर साइड की जिसने गवाही दी अभी? हाँ जी ये मेरठ। मेरठ यूपी की है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है ब्रदर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिस्टर शशि, और इनकी बेटी का नाम है वंदना, वंदना भावना। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू जी। हाँ, और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट? जय मसीह की सबको। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। पिछले 21 तारीख से मुझे ना बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, बहुत बलगम, मतलब इतनी कि मैं कुछ भी खाना नहीं ढंग से खा पा रही थी। ऐसे लगता जैसे पेट में सूजन आ गई है, और 1-2 बार बलगम में जैसे खून टाइप भी आया। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ मरने से। मैं परमेश्वर से इतना प्यार करती हूँ, मैं कह रही अगर मैं चली भी गई तो मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी। तो एक बार अपनी बहन को भी बता दिया, मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ना महिमा को संभाल लेना। ऐसा मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने मतलब दवाइयां भी मैंने बहुत खा ली, 2-3 बार शीशियां भी खत्म हो गई, कुछ नहीं फर्क पड़ा। फिर मैंने कहा हे प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने दवाई खानी छोड़ दी 10-15 दिन पहले। तो प्रभु ने मुझे तंदुरुस्ती दी। पूरी पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी खांसी की वजह से, और दिन में भी बच्चा भी परेशान हो जाता है, पास में सोती थी बेचारी महिमा। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को प्रभु तंदुरुस्ती देता है। मैं प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ। जितना भी ग्रुप्स में सब है, सबको प्रभु आशीष दे। सब इसी तरह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि आत्मिक जीवन में भी और संसार में सबकी प्रभु जी रक्षा करें। सबको जय मसीह की। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेस्टिमनी पास्टर जीत, थैंक यू। और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? ठीक है, whoever is being led can start the prayer. एक मिनट ब्रदर, मेरे की एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट वीक मैंने जाना हरियाणा, ठीक है? तो हरियाणा जाना है मेरे को। बहुत डिफिकल्ट केस है। एक मिला खुदा के
आत्मा ने अगुआ किया है, काफी टाइम से सोच रही थी मैं जाने के लिए। मेरे प्रेयर ग्रुप चलता है, ठीक है, तो आई विल बी लीड। जेंट्स ग्रुप भी चलता है, लेडीज का ग्रुप भी चलता है व्हाट्सएप पे। तो एक भाई मेरे साथ कनेक्ट है हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से। उसका हाफ पोर्शन चल नहीं पाता है, हाफ पोर्शन चल नहीं पाता है। तो परमेश्वर ने मुझे जो है ना रेवलेशन दिया कि तूने वहां जाना है। और उसकी फैमिली में काफी कुछ बहुत ज्यादा जो है ना दिक्कतें हैं। उसकी वाइफ को भी बहुत इम्प्रूव हुआ है जब से ग्रुप में आई है, और काफी कुछ परमेश्वर ने खोला है। और मेरे को खुदा ने 2 दिन पहले उनकी शादी का कुछ रीजन दिखाया। मैं अगले दिन सूर्य के टाइम ना प्रेयर में मैं बैठी हूँ। तो प्रेयर में जब मैं बैठी ग्रुप प्रेयर में, तो मेरे साथ कोई बहनें आ नहीं पाई, क्योंकि सारी बहनें बिजी थी उस दिन। कईयों के हो जाता है ना कि आपको पता सेल ग्रुप वगैरह होता है, ये चीजें सारी ओवरसीज में बहनों के। तो ये भाई मेरे को जो है ना कनेक्ट हुआ, मैंने उसको बताया। मैं कहा ऐसे ऐसे मैंने देखा तेरा सपना, तेरी वाइफ का ऐसे कलर का कपड़ा था, और मैं कहा उसके साथ एक मोटी सी लेडीज बैठी थी, मैं नहीं जानती, गोल मोटो सारा कुछ मैं रवैया बताया। और मैंने कहा कि तेरी शादी से रिलेटेड मुझे खुदा ने बताया कि कुछ तुम्हारे साथ जो है ना ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके साथ ऐसा था कि उसके बेबी हुआ था, पहला बेबी हुआ था तो वो खत्म हो गया। देन सेकंड वन बेबी आया, तो उसका सेकंड वन बेबी जो था वो पीजीआई में यहाँ पे आके दिखाया, डॉक्टर जवाब देगी। डॉक्टरों ने बोला ना माँ बचेगी ना बेटा बचेगा। तो वहीं से मतलब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रभु में। परमेश्वर ने उनका बेटा भी बचाया और माँ भी बच गई। लेकिन उसका जो पिता है ना, बच्चा जो लड़का है सचिन, जिसके पास अभी मैं जा रही हूँ, वो हाफ पोर्शन से जो है ना चल नहीं पा रहा। आई डोंट नो क्या परमेश्वर का साइन है, बट वो खुश हो गए कि मतलब मेरे को बार बार बोले सिस्टर आना 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 बोल के। तो मैं कहा चलो परमेश्वर, मैं तो नहीं जानती लेकिन तेरी योजना क्या है तू जानता है ना। मैं तेरे इशारे को ही देखती हूँ, तुझ पे ही भरोसा रखती। प्रभु तू जानता है कि तेरे डायरेक्शन में मैं कहा तूने क्या हमारे से कार्य करवाना, बस तेरे नाम की महिमा। बस ये प्रार्थना करना कि प्रभु हाँ ये जो हफ्ता आ रहा है ना, कोई बीच में रुकावट ना आए। क्योंकि मैं जब पहले भी प्लान करके हटी थी तो काफी अड़चने आई, कभी यहाँ कभी वहां। बहुत से ना मेरे बिलीवर्स लोग जो है ना, काफी लोग बोल रहे, बट मैं कई जगह अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रेयर करना बस, क्योंकि मोस्टली प्रेयर जो है ना मेरा फैमिली के साथ में, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, जॉब भी करती हूँ, बहुत चीजें मैं देखती हूँ, बट मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है ना इधर उधर नहीं बहुत लगाती। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई को पता होगा, भाई क्या नाम है यशी को पता होगा, वो मेरे को अभी जस्ट मिले हुए है। तो उनको पता मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। पास्टर भी एक जानता है, पास्टर फेडरिक डिकोर्स, उनको भी पता है। सो दैट इज माई प्रेयर पॉइंट। प्लीज रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर। Humbly request to everyone. Thank you so much. Absolutely. All right, so we have 3 prayer requests. If anybody is being led, अगर किसी को अगुवाई हो रही है तो वो कोई भी पॉइंट ले ले। मैं लेता हूँ 2-3 पॉइंट। ओके। हाँ जी बस। हाँ जी हाँ जी। 2 पॉइंट ऊपर वाले, ये 3 पॉइंट अलग है। नहीं, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है, सिर्फ अच्छा यही 3 पॉइंट है। हाँ जी। ओके ओके, आई टेक देन फिर 1 और 2। आप लास्ट वाला ले लेना। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे चरणों में आता हूँ और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी संगति के लिए, तेरे फेलोशिप के लिए और तेरे अच्छे प्रभु जी वर्ड के लिए। प्रभु जी जो हमारे दिलों में बीजा गया है वो फल लेके आ सके, बहुत सारे रूहों के लिए कारण बन सके, ब्लेसिंग का, उनकी उद्धार का कारण बन सके। प्रभु धन्यवाद करते जितने भी लोग जुड़े हैं और उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम याद करते हैं जब हम एक फेलोशिप में हैं और जैसे चेले या कलीसिया इकट्ठी होती थी, किसी बात के लिए प्रार्थना करती थी, हम ऐसे ही एक सभा, एक फेलोशिप, एक कलीसिया यहाँ पे इकट्ठी है। तो हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, इन सिस्टर को याद कर रहे हैं प्रभु जी, दोनों प्रार्थना को। और सिस्टर वंदना के और शालू के लिए प्रभु जी, when they are traveling and you are always with them and you are you always protect them, your angels are always with them Lord। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तो उनको सुरक्षा बोलता हूँ प्रभु जी, जैसे वो जा रहे हैं, तेरी सहायता, तेरी पवित्र आत्मा का
बुद्धि समझ दे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वंदना के लिए प्रभु जी, जो वो जो अंकल है जो पोजेस्ड है प्रभु जी उस स्पिरिट से, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, यू आर deliverance, Lord. You are going to deliver that uncle, Lord. By your power, by your grace, by your name, Lord, dear Lord. We speak your name. We speak your deliverance over him, Lord. Our Lord, you are going to deliver, Lord. And we speak, let लीव द बॉडी लॉर्ड प्रभु जी, उस शरीर को छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को तेरे पास लेके आते हैं यार। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं तो उसको का उत्तर देने वाला सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। जैसे हम आज यहाँ पे बैठे हैं, याद कर रहे हैं, ये सच है, ऐसे तू भी सच्चा है प्रभु जी, जो सुनता है, जिसके कान है, जो हमारी प्रार्थना को पूरा करता है प्रभु जी। हम एक्सीडेंट से नहीं, पर ये तेरी इच्छा से के अनुसार हम यहाँ पे बैठे हैं सब, और हम जीवित परमेश्वर के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, पर हम जीवित परमेश्वर के सामने बैठे हैं। और हम एक प्रभु जी उद्धार का कारण है हमारा कि हम बचाए गए हैं, हमारा हम चंगे हुए हैं, इसका कारण है प्रभु जी, हम छुड़ाए गए हैं। ये तेरे चिन्ह है प्रभु जी, ये तेरे, जब सब कुछ लोग छोड़ के प्रभु जी, इवन दे आर नॉट मीटिंग फिजिकली, ऑनलाइन भी वो इतने उनमें इतना तूने उनमें प्रभु जी पेशेंस दी, धीरज दिया कि वो बैठ सके 2-2 घंटे और प्रभु जी तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy Lord God Almighty. प्रभु जी धन्यवाद करते हुए जी आज के सुंदर दिन के लिए, जी आज के सुंदर इंतजाम के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हुए जी उन बच्चियों के लिए प्रभु जी, आयजा प्रभु जी और एलिजा प्रभु जी, जिन्होंने आज आकर के प्रभु जी अगुवाई करी प्रभु जी हमारी प्रभु जी, अब प्रभु जी आपकी उपस्थिति में लेके गए प्रभु जी, उस सुंदर प्रभु जी वर्शिप के साथ प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी पास्टर देवेंद्र के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी वर्शिप के लिए अवेलेबल हुए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हम में से हर एक से बात करने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी हमें वो मार्ग दिखाने के लिए प्रभु जी, हमें आपके राज्य तक लेके जाते प्रभु जी। आज के इस दिन प्रभु जी अपना तन मन धन प्राण देव और आत्मा आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हमें से हर एक को यीशु मसीह नासरी के जिंदा लहू में रखते प्रभु जी, हमारे परिवारों को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी, हर दुष्ट की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से आदेश देते हमें छोड़ के जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वी कास्ट आउट एवरी इविल स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी मैं खास प्रार्थना करता हूँ जी पास्टर संध्या के लिए प्रभु जी, मैंने यीशु मसीह नासरी के जिंदा लहू में रखता हूँ जी, उनकी प्रभु जी सेवकाई को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखता हूँ जी, उनकी जॉब को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखता हूँ जी, उनके परिवार को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखता हूँ जी, और जो उनकी विजिट है प्रभु जी हरियाणा में प्रभु जी, उसे यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी। वी एडज्यूर योर मिनिस्ट्रिंग एंजल्स टू प्रोटेक्ट हर एट ऑल टाइम्स प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत उनकी प्रभु जी नंगी तलवारें लेके सुरक्षा करे प्रभु जी जब वो हरियाणा जाए प्रभु जी, हरियाणा के हर प्रभु जी टेरिटोरियल स्पिरिट को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं। वी बाइंड एवरी टेरिटोरियल इविल स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु जी जब वहाँ जाए प्रभु जी, ये आपकी चंगाई को लेके जाए प्रभु जी, ये भी जाए प्रभु जी, ये यहोवा निस्सी आपके झंडे को लेके जाए प्रभु जी, और इनकी उपस्थिति के साथ प्रभु जी उस घर में आपकी उपस्थिति भरने वाली है प्रभु जी, हर दुष्ट आत्मा कांपते हुए उस घर को छोड़ने वाली है प्रभु जी, हर बीमारी यीशु के नाम से चंगी होने वाली है प्रभु जी। वी कर्स द स्पिरिट ऑफ पैरालिसिस एंड कमांड द स्पिरिट ऑफ पैरालिसिस टू लीव द ब्रदर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु जी इन्हें ताजा अभिषेक दे प्रभु जी नई सामर्थ दे प्रभु जी, इनके मुख को अपने शब्दों से भर दे प्रभु जी, स्वप्न और दृश्यों के द्वारा इनसे वार्तालाप करे प्रभु जी, इन्हें तैयार करे प्रभु जी, और जब ये जाए प्रभु जी ये आपके नाम को आदर महिमा और जलाल दे प्रभु जी, हर प्रयोजन आपकी तरफ से हो प्रभु जी, जो छुट्टी है प्रभु जी, जो फाइनेंसेस है प्रभु जी, जो प्रभु जी व्हीकल्स है प्रभु जी, वो आपकी तरफ से मुहैया हो प्रभु जी, और ये प्रभु जी आनंद के साथ प्रभु जी, अथॉरिटी के साथ प्रभु जी, फायर के साथ प्रभु जी उस घर में प्रभु जी आपकी उपस्थिति का प्रवेश कराने वाली हो प्रभु जी, और वो घर अपना छुटकारा पाए प्रभु जी, हर तरह की परिस्थिति से छुटकारा पाए प्रभु जी, हर बीमारी नादारी लाचारी उस घर से दूर हो प्रभु जी, और
आपका प्रकाश चमके प्रभु जी, और वो घर प्रभु जी एक उदाहरण का घर बनने वाला प्रभु जी. We bless her in the mighty name of Jesus, O Lord. We bless this meeting in the mighty name of Jesus, O Lord. We bless each and every member, Heavenly Father, who was able to join, and the ones who were not able to join, in the mighty name of Jesus, O Lord. We seek your grace, your love, and mercy upon each one of us, O Lord. We seek your grace, mercy, and love upon each one of us, O Lord. Change our hearts, O Lord. Search the inner chambers of our hearts, O Lord, and remove any dross which is found there, O Lord. Anoint us for your good work, O Lord. Fill us with the fruit and the gifts of the Spirit, O Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. And one more prayer request, Pastor, कि हम प्लान जो कर रहे हैं जून के लिए वीडियो शूट का, और उसके लिए सब प्लानिंग मीटिंग अरेंजमेंट जो एलन गेंटा, हेमंत शर्मा ने आना है, और ऑल द वीडियो प्रोडक्शन, ऑल द सब कुछ के लिए परमेश्वर, और हमें बुद्धि समझ दे, हमें आई नो गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग, आई नो, बट ये परमेश्वर का ये सब कुछ हो सके, और सही सब कुछ सही उससे, और प्लान बड़ा अच्छा हो सके, और उससे ज़्यादा कि ये सॉन्ग जो है ये ब्लेसिंग बन सके. दिस इज़ लाइक एवरी टाइम वी कैन डू दिस प्रे, जब भी हम फ्राइडे और थर्सडे इसको, ताकि ये हमारा रूटीन में, क्योंकि थर्सडे भी चाहे हम फ्राइडे भी नाइट में भी, उसको प्लीज़ इसको याद रखें कि विदाउट प्रे वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वट जो भी हम बीजेंगे और वो फल लेके आए, मेरा ये प्रार्थना है. प्लीज़ इसको आप इस चीज़ के लिए आप सब, मेरी प्रार्थना जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी आप अपनी डेली प्रार्थना में करें, ताकि कि जो आराधना है वो गढ़ों को तोड़ती है, छुटकारा देती है. आप जानते हो कितना. तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपनी प्रार्थना में याद रखना कि हम वर्शिप के तोड़े को बीत सके. हमें Absolutely, Pastor जी. हर कोई इस पास्टर देवेंद्र का जून में एक वीडियो रिलीज हो रहा है, जिसमें जो टीम है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, जिसमें बड़े वर्शिपर्स हैं. 4 सॉन्ग शूट होंगे. फोर सॉन्ग्स जो है वो शूट होने हैं. तो उसके लिए पहले प्रोविजन के लिए प्रार्थना करें, अरेंजमेंट्स के लिए प्रार्थना करें, जो लोग आ रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें, आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, और उन वीडियोस के लिए प्रार्थना करें, उन सॉन्ग्स के लिए प्रार्थना करें कि वो उन लोगों के पास पहुंचने वाले हों जो लोग बंधवाई में हैं, ताकि वो छूट सके और मसीह के राज्य का हिस्सा होने वाले हो. सो एवरीबडी प्लीज कीप दिस इन योर पर्सनल प्रेयर्स. वी आर प्रेइंग फॉर इट कंटिन्यूअसली, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट गॉड इज गोइंग टू यूज हिम फॉर हिज ग्लोरी. और आप सब भी इसे प्रेयर में रखें. सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन.